ملتانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، 35,000 سے کم ماہانہ آمدن والے افراد کو ملے گی خصوصی رعایت۔ ضلع انتظامیہ نے 3,700 دکانوں پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آٹا، چینی، دالیں اور گھی 20% سستے ملیں گے۔ حکومت نے ملتان کے مستحق افراد کو راشن کارڈ اسکیم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلع بھر میں غریب افراد کو سبسڈی دینے کے لیے 3700 دکانوں کو منتخب کیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمرالزمان کیسرانی کا کہنا تھا کہ مستحق افراد کو مخصوص دکانوں پر آٹا، چینی، گھی اور دالیں 20% سستی ملیں گی۔ یہ خاص راشن رعایت پروگرام ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے غریب افراد کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے پر یونین کونسل 20 دکانیں ایسی آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں اور رجسٹر کرنی ہیں جس پہ غریب افراد اپنا راشن کارڈ لے کے جائیں اور وہاں پہ رعایت کے ساتھ جو گورنمنٹ سبسڈی دے گی، جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان پہ تو وہ وہاں سے لے سکے، اور گورنمنٹ پھر بعد میں وہ سبسڈائز اماؤنٹ جو ہے وہ دکاندار کے اکاؤنٹ میں جمع کرا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمرالزمان کیسرانی کا کہنا تھا کہ 1000 روپے کا کریانہ 800 روپے میں ملے گا۔ ہر یونین کونسل میں 20 دکانوں کو رجسٹر کر کے پورٹل پر اپڈیٹ کیا جائے گا جہاں سے شہری خریداری کر سکیں گے۔ 20 ہیں ہماری ہر یونین کونسل، اس حوالے سے ہم نے 3700 کے قریب دکانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس میں سے تقریباً ہم نے 90% شاپس جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، ان کی رجسٹریشن کا عمل اب جاری ہے۔ جو ہی یہ عمل تکمیل کو پہنچتا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سبسڈی والا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ قمرالزمان کا مزید کہنا تھا کہ مستحق افراد کی فہرست میں 35,000 سے کم آمدن والے لوگ شامل ہوں گے جنہیں حکومت خود اپروچ کر کے راشن کارڈ جاری کرے گی۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ کسانوں کے لیے ایک اور پریشانی، کمپنیوں نے 1 جنوری سے ٹریکٹروں کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ٹریکٹروں کی قیمت میں 2 لاکھ روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بکنگ کے بعد 2 سے 3 ماہ میں ڈیلیوری کی جاتی ہے۔ رضا ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ کاشتکاروں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ کھاد تو پہلے ہی غائب ہے، اب ٹریکٹرز بھی مہنگے کر دیے گئے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ٹریکٹرز کی قیمتوں میں 2 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے۔ ڈیلر شیر علی کہتا ہے ٹریکٹروں پر سیلز ٹیکس میں اضافے سے قیمتیں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ 350 سے آج سے 3 مہینے پہلے یہ 16 لاکھ کا بک رہا تھا، آج جو ہے نا 19,11,000 کا بکنگ ریٹ پہ ہے، وہ بھی ٹریکٹر 3.5 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ تو مزید اگر سیل ٹیکس لگے گا تو وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں 385 ٹریکٹر کی قیمت 20 لاکھ جبکہ 240 کی قیمت 12,75,000 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈیلر سلیم بھٹی کا کہنا ہے کہ الغازی ٹریکٹر کمپنی نے بھی 1 جنوری سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ الغازی 480 ٹریکٹر کی قیمت 11,67,000 سے 12,28,000 جبکہ 640 ٹریکٹر کی قیمت 17,25,000 سے بڑھ کر 18,19,000 روپے ہو جائے گی۔ مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے 1 تاریخ سے، جو کہ کمپنی کی طرف سے بھی اضافہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اضافہ سننے میں آ رہا ہے 5% ٹیکس کی صورت میں۔ تو ٹریکٹر پہلے سے بہت مہنگا ہے، ذمہ دار کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ محمد سلیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریکٹرز کی بکنگ ریٹس ہیں 2 سے 3 ماہ بعد ڈیلیوری ہوتی ہے۔ گزشتہ 3 سال کے دوران ٹریکٹرز قیمتوں میں 6 لاکھ روپے تک اضافہ ہوا۔ قیمتوں کی مانیٹرنگ کے حوالے سے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان۔ تحصیل جتوئی میں یوریا کھاد کی عدم دستیابی، کسانوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ گندم کے بعد کنولا کی فصل بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، جبکہ جانوروں کا چانہ بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے عمران سعیدی۔ کھاد کی عدم دستیابی کے باعث جتوئی کے کسان رول گئے، کنولا کی فصل بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ جانوروں کا چارہ گھاس بھی کھاد کی ضرورت پوری نہ ہونے سے متاثر ہونے لگا۔ حکومتی پالیسیوں نے کسانوں کو ڈبو دیا۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ جتوئی انتظامیہ ان کی بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کھاد کا بڑا بحران ہے سر، ساری کنک دی فصل بھی تباہ تھی گئی ہے، جانوروں کا چارہ جہاں وہ بھی ختم تھون دے نیڑے ہے، کوئی کھاد نہیں ملتی پئی، بڑا بحران ہے۔ حکومت کو چاہیے یہ سارے مطالبے جہاں نے پورے کریں تو ریلیف دے، کوئی کھاد سب کو پیسہ چاہیے وہ کھاد نہیں ملتی۔ ہماری کھاد کی وجہ سے فصل بھی، کنک کا فصل بھی تباہ ہے اور چارہ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں پریشانی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں سب کو ریلیف دے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث زراعت کا شعبہ تباہ ہو گیا۔ کیمرامین صادر خان کے ساتھ ہی عمران سعیدی، روہی، جتوئی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے کالجز اور یونیورسٹیز میں ترقیاتی کام اب مکمل ہوں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز اور یونیورسٹیز کے اپ گریڈیشن منصوبوں کے دوسری سماہی کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ تمام فنڈز مالی سال کی دوسری سماہی کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ UET ملتان پر
कुल 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। एमरसन कॉलेज यूनिवर्सिटी का BS ब्लॉक, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की नई बिल्डिंग भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। जिला मुल्तान के वासियों के लिए अच्छी खबर है। 1 फरवरी से 24 घंटे सेहत की सहूलियात मिलेंगी। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने 16 मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने की मंजूरी दे दी है। जनूबी पंजाब के तमाम छोटे बड़े हेल्थ यूनिट्स में 24 घंटे ज़चगी और माँ बच्चे की खुसूसी देखभाल समेत दीगर तिब्बी सहूलियत मुयस्सर होंगी। इन मराकज़ से सेहत पर सहूलियत की फराहमी अगले साल 1 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। खान बेला, खान थेकला, MRR 418, जलालाबाद, झोंक, लश्करपुर और दीगर मुआवजात शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तौसा के बासियों को मिलेगा अब साफ पानी। वाटर सप्लाई स्कीम की मद में 33 मिलियन के फंड जारी हुए हैं। वाहवा में जारी स्कीम के फंड काफी अर्से से तातुल का शिकार थे। खत लिखने की वजह से फंड्स की फराहमी मुमकिन हुई है। तौसा शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशा हैं। सिवरेज और PHA की स्कीमों पर तेजी से काम जारी है। शहर में तफरीह और खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियत की फराहमी में सेहत और साफ पानी की फराहमी तरजीहात में शामिल है। प्रॉपर्टी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक रोज बाकी है। 1 जनवरी से FBR में रजिस्टर्ड होने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर प्लॉट्स और फाइल्स ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन कानून को काला कानून करार दे दिया है। मुतालबा तस्लीम न होने पर 15 जनवरी को एहतजाज भी किया जाएगा। शराइत के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स की खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड रखा जाएगा। चीफ कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन खिदमत ग्रुप मोहम्मद सईद का कहना है कि FATF की शराइत पर प्रॉपर्टी डीलर्स पर लागू करना नाइंसाफी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करीब तर हैं। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 6 जनवरी को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इजलास में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख पर गौर करेगा। पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों के अमल का जायजा और कारकर्दगी को चेक किया जाएगा। महकमा बल्दियात मई के पहले हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ख्वाह है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान के ओहदेदारान के एजाज में अलविदाई तकरीब हुई है। साबिक गवर्नर मलिक रफीक रिजवाना, मेयर चौधरी नवीदुल हक अराइन, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराइन समेत यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन शरीक हुए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। 2017 से शुरू होने वाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान का बल्दियाती दौर इख्तिताम पजीर हो गया। बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, चौधरी अब्दुल वहीद अराइन, साबिक MNA शेख तारिक रशीद, साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर समेत कसीर तादाद में लीगी UC चेयरमैनों ने शिरकत की। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराइन ने अपने दौरे इख्तिदार के इख्तिताम पर हाउस का शुक्रिया अदा किया। कल हमारी कोर्ट में पेशी है, जो भी अगला लाए अमल बनेगा इसके बाद बनाएंगे। और अगर इलेक्शन PTI गवर्नमेंट कराती है तो इंशाल्लाह पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून ही विन करेंगे। अलविदाई तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के किसी अमले ने शिरकत नहीं की। यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों का कहना था कि उन्होंने अपने दौर में अवाम के मसाइल हल किए। टिनौर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हम अपने मेयर साहब के साथ जो है तमाम हाउस के मेंबरान ने दिलो जान से जो है वो मेहनत की है और अपने शहर की खिदमत की है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दौर में मसावी सलूक न मिलने पर UC 5 के चेयरमैन राव मजरुल इस्लाम ने शील्ड लेने से इनकार कर दिया। इसने भी आती है मेरे साथ। अच्छा मैंने किसी और का नहीं, मैंने कहा फहमीदाबाजी दे दे, वो हमारे भाई की नहीं अपनी ले रहा। मेरी ऐसी शील्ड लोग मुझे क्या यार। तकरीब के इख्तिताम पर हाउस मेंबरान में एजाजी शील्ड तकसीम की गई। मसाइल उजागर करने पर रोही को भी एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान जिला काउंसिल का इख्तितामी इजलास हुआ है। चेयरमैन जिला काउंसिल शरीक नहीं हुए हैं। वाइस चेयरमैन ने मुद्दत बढ़ाने के लिए अदालत से उम्मीद लगा ली है। कहते हैं वो दोबारा बहाल होंगे। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म। चेयरमैन जिला कौंसिल दीवान अब्बास बुखारी इख्तितामी इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि UC चेयरमैन कसीर तादाद में शरीक हुए। कन्वीनियर के फ्राइज वाजिद अली शाह ने अदा किए। इस मौका पर वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल सरफराज खोर का कहना था, हम दोबारा बहाल होंगे। हमारा केस अदालत में है। 14 जनवरी को बहाली की उम्मीद है। आपके सामने ही है। किसने आपको कहा कि इख्तितामी इजलास है? अभी इंशाल्लाह चलेंगे इजलास। मुद्दत तो आज खत्म हो रही है। नहीं, अभी तो चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है जी।
तहरीक इंसाफ की खातून चेयरमैन डॉक्टर हमीदा खानम का कहना था कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में अवाम की खिदमत बेहतर तरीके से नहीं हो सकी। बल्दियाती नुमाइंदों के पास अख्तियारात नहीं थे। उम्मीद है आइंदा निज़ाम के तहत अख्तियारात मिलेंगे। देखें, हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कानून है ही नहीं। पहले सारा कुछ हो जाता है, बाद में वो पुलिस भी बाद में पहुंचती है। तो इसी तरह ये जो हमारा हाउस था, इसको भी मुकम्मल नहीं हमें होने दिया। जितने दिन के लिए हमें बुलाया गया था या रखा गया था, जो वोट मिले थे, हम वो काम नहीं कर सके हैं। यूसी चेयरमैनों का मजीद कहना था कि अगर अदलिया ने उनको मजीद काम करने की इजाजत दी तो अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों का वक्त खत्म हो गया, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड के 9 मुंतखब मेंबरान ने काम शुरू कर दिया है। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के 9 मुंतखब मेंबरान ने काम का आगाज कर दिया। वार्ड नंबर 7 में सफाई का काम शुरू। मकीन खुश हैं, कहते हैं वोट दिया, आज नुमाइंदों की जानिब से मसाइल हल हो रहे हैं। खुश हैं इंशाल्लाह। ये जितना भी है ना, हमने इसलिए से हमने इनको दोबारा वोट दिया कि उन्होंने पहले भी काम कराए और अब भी काम करवाए। हमारा मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके लिए हम मशकूर हैं। और सफाई के बड़े यानी कि ज़बरदस्त इंतजाम आते हैं और होते रहते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबरान का कहना था कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। काम करेंगे तो अगली बार अवाम वोट देगी, काम नहीं करेंगे तो आइंदा इलेक्शन में जिल्लत का सामना होगा। दिन रात खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से खिदमत की और फिर नेक्स्ट इलेक्शन लड़ा। नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना और जीतने का मकसद ही यही है कि अवाम के काम करवाना और फिर जीत के आना। तो इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा और इंशाल्लाह जीता। लोगों के काम कराए तो लोगों ने मुझे दोबारा मुंतखब करवाया। कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबरान की जानिब से काम शुरू करने पर सफाई के मामलात मजीद बेहतर हो रहे हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शन के बाद 9 मुंतखब नुमाइंदों ने अब अपने इलाकों में जाकर काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर वोटर्स भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मैपको डिवीजन कोटछुट्टा में ट्रांसफार्मर चोरी के वाकयात में इजाफा। चोर रात की तारीकी में बस्ती याकियानी से 100 kV ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने के बायस बस्ती याकियानी में 300 से ज्यादा घरों को बिजली मुअत्तल हो गई है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले में इलाका मकीनों का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि मैपको एहलकार खुद ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों में मुलव्विस है, जिसकी वजह से मैपको और पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही। ट्रांसफार्मर चोरी होने से जहां लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं हुकूमत का भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एबका रहीम यार खान की जनरल सेक्रेटरी मकबूल अहमद के साथ मोबाइल डकैती के खिलाफ टाउन हॉल में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन जिले जनरल सेक्रेटरी रहीम यार खान मकबूल अहमद के साथ डकैती के खिलाफ मैदान में आ गए। टाउन हॉल में एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू रोड पर जिले जनरल सेक्रेटरी एबका मकबूल अहमद के साथ डकैती की वारदात हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और न ही मुलजिमान गिरफ्तार किए। कल मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, उसकी हमने इब्तदाई रिपोर्ट फौरी तौर पर थाना डिवीजन में दर्ज करा दी थी, लेकिन उनकी ये बेहिस्सी मैं समझता हूँ कि आज तक दूसरा दिन हो गया, ना FIR कटी है अभी तक, ना कोई मुल्ज़िम को पकड़ा गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो बल्दिया मुलाजमीन शहर में सफाई नहीं करेंगे। हमारा ये एहतजाज रहेगा और हम कल इजलास करेंगे। उसके बाद दिल्ली सतह पर भी तमाम दफातर बंद कराएंगे और हमने इस सिलसिले में एबका पंजाब को भी जो है ना वो इतला कर दी है। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही, रहीम यार खान। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज 10 मई से होगा। इंटर के सालाना पर्चे 18 जून से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड पंजाब ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत एक ही वक्त में इम्तिहान का आगाज होगा। इम्तिहानात का आगाज 10 मई 2022 से होगा, जबकि इंटर इम्तिहानात 18 जून 2022 से होंगे। बहावलपुर प्रेस क्लब के इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। शाहिद बलोच 79 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी पर 97 वोट लेकर चौधरी सलीम मुंतखब हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं महमूद शहीद से। महमूद, बताइएगा कौन कहां पे जीता है? जी, बहावलपुर प्रेस क्लब के इंतखाबात का रिजल्ट मौसूल। शाहिद बलोच सदर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम मुंतखब हो गए। शाहिद बलोच साहब, क्या कहेंगे अपनी जीत पर? भाई, मुझे ये खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथियों की वजह से आज मुझे ये 7वीं मरतबा सदर बनने का एजाज बख्शा। मेरी
कामयाबी ही मेरी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इंशाअल्लाह ताला अल अजीज, और ये दोस्त मेरा असासा हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। इंशाअल्लाह सहाबियों की मुश्किलात को दूर करने के लिए हम अमली तौर पे इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहावलपुर की प्रेस क्लब की तारीख में इतने ज्यादा वोट, 97 वोट अभी तक बहुत कम लोगों ने लिए हैं। क्या जादू किया है चौधरी सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी? जी, लोगों की खिदमत की है, लोगों के बच्चों को पढ़ाया है, लोगों के काम किए हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले साल भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन मैं 16 वोटों से कामयाब हुआ था। और इस दफ़ा मेरे दोस्तों ने कहा कि आपने इलेक्शन रिपीट करना है, तो मैंने इलेक्शन रिपीट किया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला की, आप दोस्तों की और मेरे प्रेस के साथियों की, जिन्होंने हमें मुंतखब किया, भारी मैंडेट दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी मेरे उन दोस्तों की कामयाबी है जिन्होंने दिन रात एक किया, हमारे लिए काम किया और लोगों को मोबिलाइज किया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी नजर करम रखे। बहावलपुर प्रेस क्लब के इंतखाबात में बहावलपुर फ्रेंड्स ग्रुप के मैदान मार लिया है और न सिर्फ सदर और जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त जीती है, बल्कि मजलिस आमला और दीगर सीटों पर भी भारी। ज़हीर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे निकल गई। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर हो गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्रोग्राम की तशहीर पर मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड खर्च करेगी। किफ़ायत शारी का राग अलापने वाली हुकूमत आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देने के लिए अरबों रुपए सिर्फ इसकी तशहीर पर खर्च करेगी। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए का बजट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तशहीर पर खर्च करने की मंजूरी दी। वफात पाने वाले सरकारी असातिज़ा के खानदानों की माली मुआवनत नहीं की जा सकी। पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए से ज़ायद का बजट रोक लिया है। हुकूमत की जानिब से जहां लिव इन कैशमेंट की मद में 2 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाना है, वहीं पंजाब हुकूमत दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले असातिज़ा की सरकारी सतह पर माली मुआवनत का बजट भी रोके बैठी है। महकमा स्कूल एजुकेशन के सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हुकूमत से ताहाल 6 अरब रुपए का फंड नहीं मिल सका। कमिश्नर डीडी खान तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए इन एक्शन हैं। सिविल अस्पताल सखी सरवर की नई बिल्डिंग का मुआयना किया। सीओ हेल्थ और दीगर अफसरान ने उन्हें ब्रीफिंग दी है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने सखी सरवर के आवाम के लिए सिविल अस्पताल का तोहफा दिया। फर्नीचर, स्टाफ और दीगर काम अगले साल जनवरी में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर ने कहा कि सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सिविल अस्पताल सखी सरवर का इफ्तिताह करेंगे। सिविल अस्पताल से शहरी, ज़ायरीन और मुसाफिरों को बड़ा फ़ायदा होगा। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद इन एक्शन हैं। वासा की मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया। टाउन अस्पताल रहीमाबाद में स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात का स्टॉक चेक किया। सफाई के नाकिस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने इंसारी चौक रेलवे लाइन, सिविल लाइन इंस्टॉलेशन, वाटर वर्क्स रोड, मंसूराबाद सिविज वर्क का जायजा लिया। उनका कहना था कि शहरियों के मसाइल के अजाले के लिए सिविल स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। डीसी मुल्तान आमिर करीम खान का गिरदावरी सिस्टम को डिजिटल करने के लिए तहसील शुजाबाद का दौरा, जहां उन्होंने गिरदावरी सेटअप की इंस्पेक्शन की और ख़ुद भी डाटा को डिजिटल किया है। उन्होंने फसलों में पैदल चलकर लैंड रिकॉर्ड को अपलोड किया। एडिशनल डीसी रेवेन्यू तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर भी उनके हमरा थे। डीसी आमिर करीम खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने ज़राई फसलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का आगाज़ कर रखा है। जिला मुल्तान के 500 से ज़ायद मुआज़ात में डिजिटल गिरदावरी जारी है। पंजाब लेबर कोड नंबर 9 मुल्तान के जज आरिफ खान न्याजी का बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि मैपको इंतजामिया लेबर कवानीन की मौजूदगी में वापदा एम्प्लॉयज रूल्स के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती। अदालत ने मैपको इंतजामिया की पाकिस्तान वापदा एम्प्लॉयज रूल्स 1978 के तहत की गई तमाम कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है। मुकदमात में फैसला सुनाते हुए करार दिया गया है कि लेबर कवानीन के तहत वर्कमैन मुलाजमीन के खिलाफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस 1968 की दफा 15 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
محکمہ سوشل ویلفیئر کے مختلف اداروں میں 10 سے زائد پوسٹیں خالی ہیں. ادارے کی کارکردگی متاثر کے مختلف اداروں میں سپروائزر سوشل ویلفیئر، معلمہ، فیمیل نرس، کرافٹ سپروائزر، مارکیٹنگ آرگنائزر، ہاؤس مدر، اسٹور کیپر، نرسری ٹیچرز، ٹیکنیکل انسٹرکٹر، نیڈل کرافٹ انسٹرکٹر کی سیٹیں خالی ہیں. سیاحتی مقامات پر اشیاء خنوش کا معیار بہتر نہیں ہو سکا. سیکٹری ٹورزم کی ہدایات کے باوجود سیاحتی مقامات پر خوراک کا معیار بہتر کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. سیکٹری ٹورزم کی ہدایات کے مطابق فوڈ اتھارٹی نے سیاحتی مقامات پر ماڈل فوڈ سٹالز نہیں لگائے ہیں، جس کے سبب سیاح وزٹ تو ضرور کرتے ہیں مگر کچھ کھائے پیے بغیر ہی روانہ ہو جاتے ہیں. کھانے کی تیاری اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے بھی کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے معیاری سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. تونسا شریف میں پاکستان پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کا اجلاس ہوا ہے. شاعر ادیب ڈاکٹر اشور لال نے خصوصی شرکت کی ہے. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر اشور لال کا ایسا کہنا تھا. تونسا شریف میں پاکستان پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کا اجلاس ہوا. تحصیل صدر خواجہ عاقب، ضلعی نائب صدر محمد آصف، تحصیل نائب صدر طاہر بشیر، دیگر عہدیداران صابر بزدار، بابا نیاز، مشتاق احمد، اظہر قریشی، اکرم خان گورمانی، سلیم بھٹی، ہیبت خان، علی حسنات بزدار، اویس کرنانی اور دیگر شامل ہیں. دور دراز کے علاقوں کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے. سیکٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ساؤتھ پنجاب تنویر اقبال تبسم نے ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے اسکریننگ کیمپ لگانے کی ہدایات کر دی گئی ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال کی جانب سے فوکل پرسن نامزد کیے جائیں گے. ان کیمپس میں ادویات کی فراہمی، پیرامیڈیکل اور دیگر اسٹاف کی تعیناتی کے لیے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی، جبکہ کیمپوں کے انعقاد بارگاہی سرگرمیاں IRMNCS کی ٹیمیں کریں گی.